Welcome students. This is your first class of SST in class 8. Now let's study about the chapter 1 history and its importance. The very first chapter that we talk about the importance of history. In this topic, we have a study about the values of date and time in history. Most of the student among yourselves consider history very boring and monotonous subject. They thought that it only about memorizing the date, but however under this chapter we develop the concept and ideas about history, why we have to study history and why it is very crucial to understand about our past event in India and as well as in world. Now let's talk about some interesting example. Suppose if I ask about your birth date, I think you might remember it well, but let's check another of your class. If I ask anyone in your class about your birthday, I think no one have a correct answer. Only the probability that only close friends will answer the question, and similar many things comes in your mind. Let's talk about the chapter. Before starting the main chapter, we develop some concept about history. First of all, it is very hard. It's very hard to fix a thing on one fine day. कोई भी चीज एक दिन में बनकर तैयार या कंप्लीट नहीं होती है. It started gradually and stretch over a period of time. Journey from where, when to how. Similarly, it means कोई भी चीज जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होती है. जब भी किसी काम को करते हैं तो वो एक प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप, जैसे सच एन एग्जाम्पल, एक आदमी इस स्टेज पर कब पहुंचेगा, जब तक वो इन स्टेज को क्रॉस नहीं करेगा वो इस स्टेज पे कभी नहीं पहुंचता. तो इट ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप. सच एन अनदर एग्जाम्पल, have you all very familiar with the tea, चाय. हम लोग सब उससे काफी ज्यादा फेमिलियर हैं. इट्स वेरी फेमस एंड everyone have in its house. बट टी एक फेमस बेवरेज क्या एक दिन में बन गया? उसकी भी अपनी हिस्ट्री है. उसे बनने में काफी वक्त लगा. किसी ने उसके पत्तों को ढूंढा, किसी ने उससे चाय बनाने का प्रोसेस सीखा, फिर किसी ने उसे दुनिया में फैलाया, तब जाके वो घरों तक पहुंचा. तो कोई भी काम एक दिन में नहीं होता. सच एन अनदर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट. बिफोर some years ago, air travel is very difficult to a common man. It's only for some rich person in the society. But after introducing the Udan Yojana by the government with the slogan उड़े भारत का आम नागरिक, इट मीन्स हर आदमी यानी इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन को एयर ट्रैवल या किसी भी इस तरह की लग्जेरियस फैसिलिटी का अधिकार था. तो क्या वो एक दिन में हो गया? नहीं. उस पार्टिकुलर चीज को होने में भी, यानी इस स्कीम को अप्लाई करने, लागू करने में भी काफी टाइम लगा. और आज के डेट में हम देखते हैं इट्स वेरी इजियर टू परचेज द एयर टिकट एंड टू ट्रैवल बाय एयर. इट अप्रोचेबल बाय एवरीवन. तो ये कैसे हो पाया? जब गवर्नमेंट ने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके लिए एफर्ट लगाया, then it came as a result. So let's start the chapter. History and its importance. In this chapter we have studied
importance of date in history, sources of information in history, periodization, importance of survey, what is colonialism, drawback of official records. Okay, the first topic we have, why are dates important in history? Dates आखिर important क्यों है? The history is synonymous with date. हिस्ट्री और डेट जो है आपस में काफी सिमिलर है, ये एक दूसरे के पूरक है, एक साथ चलते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज डेट इन हिस्ट्री आर समटाइम डेटेबल, क्योंकि जो हिस्ट्री में जो डेट्स दी जाती हैं कभी कभी उनसे हमें काफी सारा डेटा मिलता है। सपोज इन 7th क्लास इन हिस्ट्री हैव यू स्टडीड अबाउट द बाबर, हुमायूं, अकबर। द अकबर वाज द ग्रेट किंग इन इंडिया। देन क्या वो एक दिन में किंग बन गया? एक ही दिन में वो उसने आया, अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और वो किंग बन गया? नहीं, ऐसा नहीं था। देन it is a process. First of all, Babur came to India. He started the dynasty here, and after that Humayun. And after he came and he learned how to control over the India. तो ये एक टाइम था। तो इससे हमें एक डेटाबेस मिलता है कि मुगल डायनेस्टी में कौन पहले आया। पहले बाबर आया, फिर इस डेट को वो थ्रोन पे बैठा, इस डेट को फिर उसका बेटा जो हुमायूं था वो बैठा, फिर इस डेट को हुमायूं को इंडिया से छोड़कर जाना पड़ा। देन आफ्टर दैट बाबर अगेन केम ऑन द थ्रोन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के जो डेटाबेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं? इट्स ओनली फाउंड बाय द डेट्स। History is insight into the past, how change have affect our lives. History हमें बताता है कि हमारा जो past है वो हमें कैसे इफेक्ट करता है। ये बहुत ही क्लियर है, हम देख सकते हैं। Such an example again, have you listened about America? America is a very developed country, but India is still developing country. Why? Because America got freedom before India, more than 100 years. तो अब क्या था? क्योंकि अब अमेरिका को 17th सेंचुरी में ही क्या मिल गया? फ्रीडम मिल गया। वहीं इंडिया को नहीं मिलने की वजह से, इंडिया को कब मिला? इन 1947। देखो अगेन ये डेट है 15 अगस्त 1947, अगेन अ डेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि उस दिन हिस्ट्री में क्या हमने अचीव किया? हमने अचीव किया था अपना इंडिपेंडेंस। सो डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। And always remember student that the history past always reflect, the future is reflection of past. हम past में जैसे होंगे हमारा future भी उसी पे डिपेंड करेगा। Okay, most of the time we take thing for granted. कभी कभी हम क्या करते हैं, चीजों को कैजुअल लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो है, कोई बात नहीं। But sometime the certain thing make us wonder about the past. But कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीजों से काफी amazed हो जाते हैं। जब हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज देखते हैं या ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं देखी हो, तो वो हमें क्या करते हैं, अंदर से आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हुआ होगा, इसके पीछे की स्टोरी क्या होगी। Then we talked about the past of the place, past of the thing, about knowing it. So that such an again example, if you have seen the heritage just like Red Fort, Taj Mahal, तो जब हम इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हमें कभी कभी ये अमेज्ड होता है, हमें आश्चर्य होता है कि आखिर कैसे उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन लोगों ने ऐसा कैसे कर लिया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिर कैसे तैयार किया। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। देन तब हम उस पास्ट इवेंट को जानने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें उस पार्टिकुलर कल्चर और पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, देखो। ऑन द सीइंग द पेंटिंग इन द एलोरा केव्स, जब हम एलोरा केव्स के बारे में जानते हैं, एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, तो जब हम एलोरा केव्स के बारे में जानते हैं तो हमें काफी वंडर होता है, हम काफी आश्चर्य करते हैं कि आखिर कैसे
उस समय एंशियंट टाइम के लोगों ने सिर्फ प्लांट से कलर ऑब्टेन करके इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई जो आज भी वैसी ही है। सो इट्स वेरी अमेज्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हम कैसे करें और कब कर रहे हैं, यानी हम कोई भी चीज कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये हमारे अंदर क्या आती है, क्यूरी आती है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे एंसेस्टर ने ऐसा क्या किया। देन वी हैव डिस्कवर आवर पास्ट। अब चलो देखते हैं कि ये जो एक इमेज है, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो अब इस इमेज को हम ध्यान से देखते हैं। दिस इज द इमेज अबाउट 3 ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रा टू ब्रिटानिया। अब ये ब्रिटानिया क्या है? ब्रिटानिया इज अ पावर ऑफ सिंबल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर सिंबल है। तो अब इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे इस इमेज में 3 ब्राह्मण लोग हैं और ये ब्रिटानिया को यानी ब्रिटिश साम्राज्य को हमारे शास्त्र यानी हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है वो दे रहे हैं अपनी मर्जी से, ताकि ये ब्रिटानिया उसको और अच्छा बना दे, जो कि फैक्ट नहीं है। दिस इज फ्रॉम द मैप ऑफ हिंदुस्तान बाय जेम्स रेनल। अब क्या था कि ये मैप ऑफ हिंदुस्तान क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम, उन्होंने कहा कि इंडिया को मैप की जरूरत है और इसलिए हमें हिंदुस्तान का मैप बनाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, मैप ऑफ हिंदुस्तान। और ये बनाया किसने? जेम्स रेनल ने। क्यों बनाया गया? ताकि मैप बनाने से एक जब सर्वे किया जाएगा तो उस सर्वे में काफी चीजें सामने आएंगी, जैसे इंडिया के किस प्लेस पे रिसोर्सेज ज्यादा है, किस प्लेस पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है, कहाँ पे मिनरल्स है, जिससे यहाँ के रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। That's why they proposed the proposal of map of Hindustan by Robert Clive and made by James Runnel. Clear? अब देखते हैं in history time cannot be dated a particular month or time year. टाइम जो है कोई एक चीज नहीं है जिसे हमने यहां से उठाया और ले लिया। इट्स अ प्रोसेस, एज आई सेड अर्लियर, ये एक प्रोसेस है किसका, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का। सेम वे इसको हम फिक्स नहीं कर सकते एक जगह पे, क्योंकि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज हम ये देखते हैं, एक स्टेज उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन ये जो काम जिस पार्टिकुलर पीरियड में हुआ उसे यहाँ फिक्स कर दिया जाता है। तो फिर ये क्या हुआ, इस पार्टिकुलर इवेंट का टाइम कहलाया और डेट। ओके, सो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिशियर्स जो थे वो एक ही दिन इंडिया आए और उसी दिन इंडिया पे कब्जा कर लिया और उसी दिन इंडिया में राज करना स्टार्ट कर दिया। नो, इट इज नॉट ट्रू। ब्रिटिशियर्स ग्रेजुअली कंट्रोल ओवर द इंडिया। उन्होंने ये धीरे धीरे किया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट इवेंट थी उन इवेंट को कैप्चर किया गया बाय द हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को लिखते हैं, पढ़ते हैं या हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं। सॉरी। So that Britishers not came India at one day. They capture it and start ruling it gradually, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, क्यों किया और किस तरह से किया। Then why we associate with the date? अब हम एक और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम हिस्ट्री को आखिर डेट के साथ ही क्यों एसोसिएट करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इन द पास्ट हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट बैटल। पास्ट में काफी सारे बैटल्स हुए हैं बिटवीन द किंग एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो द ब्रिटिशियर्स एंड डच एंड मोर ओवर। तो उन सब के बीच जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, जो फाइट हुए, उसके अलावा
जो लोगों ने कैसे अपनी लाइवलीहुड की, किस राजा ने कैसे लोगों पे शासन किया, कौन सा राजा ग्रेट था, किसने अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम किए। तो इन चीजों को याद रखने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए हिस्टोरियन क्या करते हैं, इन इवेंट को सजाते हैं बाय द सीक्वेंस इन अ डेट, ताकि हम टाइम पढ़ने पर इन चीजों को स्टडी कर सके और जान सके कि हमारे पास्ट में चीजें किस वक्त पर कैसे हुई थी। ओके, दिस इज अबाउट द व्हेन, वेयर एंड हाउ। सो द हिस्टोरियन रोट अबाउट, देखो अब हिस्टोरियन किस बारे में लिखते हैं, द किंग वॉज, हाउ द किंग वॉज क्राउंड, राजा अपनी गद्दी पर कैसे बैठा, इन विच ईयर ही मैरिड, वो कैसे, उसकी शादी कब हुई, एंड ही हैड एनी चाइल्ड और नॉट, अर्ली फाउट्स एंड पार्टिकुलर वॉर, उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कौन कौन सा फाइट किया है, किन राज्यों को अपने एरिया को कैसे एक्सटेंड किया है, एंड व्हेन ही डाइड, वो कब मरा, एंड after his death who became king, who came on the throne of the particular region, so that इन सब के जवाब हमें कहां से मिलते हैं, हिस्ट्री से। ओके, और इसलिए इन सारे इवेंट्स को एक डेट में सिंक्रोनाइज करना, एक डेट में सजाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन द हिस्ट्री टेल अस how and when certain events took place. हिस्ट्री अगेन हमें बोलती है कि कोई भी चीज जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ। अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इन अशोकांस पीरियड, हम लोग ऑलरेडी सबके बारे में पढ़ चुके हैं अबाउट द इन मगध एरा। तो हम देखते हैं कि मगध में आफ्टर बिकेमिंग द किंग, अशोक ने क्या किया, उसके राज्य में लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न किया, लोगों का लाइफ कैसा था, उन्होंने किस तरह से चीजों को अडॉप्ट किया, डेवलप किया। देन दिस इज द अबाउट द सिटीज डेवलप। अगेन एग्जाम्पल हरप्पा, हैव यू लिसन अबाउट द हरप्पा? हरप्पा इज अ वेरी डेवलप्ड सिटी। तो उस सिटी के बारे में हम कैसे जानते हैं, आफ्टर सिक्वेंसिंग इट इन द हिस्ट्री इन डेट्स, हम ये जानते हैं कि कैसे ये एक एंशियंट सिटी थी, किस तरह से लोग यहाँ रहते थे, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो अगेन हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द न्यू आइडिया एंड कल्चर। अब अगर एक राजा, सपोज मान लो एक पार्टिकुलर ये एक्स नाम का राज्य है, इसमें ए नाम का राजा शासन कर रहा है। अब अगर ए नाम का राजा शासन कर रहा है और इसकी डेथ हो जाती है, तो हो सकता है कि वाई नाम का जो एरिया था वहां का शासक इस पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अपने आइडियाज को, अपने कल्चर को इस एरिया पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो कैसे किया, ये सारी चेंजेस जो है सोसाइटी में, अब क्या होगा कि ये एरिया और ये एरिया दोनों एक हो जाएंगे और दोनों का कल्चर मिक्स हो जाएगा। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, दीज ऑल आर अबाउट द डेट्स इन हिस्ट्री। दैट्स व्हाई द